Hello guys, welcome to my YouTube channel Anish Shaw Classes, and today we are going to do the second class of Basics of Accounts. So let's have a recap. In the previous class what we have done, what is event, what is transaction, two examples of event and transaction, classification of accounts according to modern approach, that was nominal, real and personal. What is nominal? Any kind of expense, income, gain or loss is the nominal. What is personal? What is real? Any kind of asset account. And what is personal account? There were three categories. One was natural person, artificial person, and third one was personal representative. Natural person means person like you and me. Okay. Artificial person means like company, those who have separate legal entity. And the third one is personal representative account, any kind of account behind which someone is hidden, like provision for doubtful debt. Understood? And lastly, what we have done, expense, loss, income and gain. What was that? Now today we are going to start with classification of accounts into personal, real and nominal. Which account is will go under which head? We need to learn this. Okay. In that class, I have said also that I will teach you what is the meaning of asset. First write that, then we will solve this one. Okay. I am doing in this part. Question is, how to determine asset? How to determine asset? Okay. समझे कैसे वो asset? There are two conditions. There are two conditions that need to be satisfied to call it as an asset. What are the two conditions? The first one, is, see, how to determine it as an asset. There are two conditions. Both should be filled up. Both the conditions should be satisfied. Understood? Then only you can call it as an asset. If any one is satisfying and one is not satisfying, then you can't call it as an asset. Okay. The first one is, it should give us a benefit for 1 year or more than 1 year. It should give us a benefit for 1 year or more than 1 year. Okay. It should give benefit to us for 1 year or more than 1 year. The first condition is this, and second condition should also be satisfied. It should have a resale value. Means what? If before it gets exhaust. Okay. Means what? एक साल से ज़्यादा मेरे को बेनिफिट देगा, जैसे बिल्डिंग एक साल से कहीं ज़्यादा मेरे को बेनिफिट देता है. दूसरा, इट शुड हैव अ रीसेल वैल्यू. अगर बिल्डिंग को हम बेचेंगे तो उसके पैसा मिलेगा ना, तो उसे कहते हैं रीसेल वैल्यू. और रीसेल वैल्यू का मतलब स्क्रैप वैल्यू नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल, आपके घर में न्यूज़पेपर वगैरह आता होगा, महीना भर या 2 महीना तक उसको हम लोग पढ़ते और उसको जमा करते हैं. जब कबाड़ी वाला आता है तो उसको हम लोग बेच डालते हैं. तो क्या जिसमें हम बेचते हैं, तो क्या वो स्क्रैप वैल्यू है कि वो रीसेल वैल्यू है? वो स्क्रैप वैल्यू है. कीमत उसका बहुत ज़्यादा है. हर दिन का 5 रुपये, मतलब महीने भर का 150 रुपया, 2 महीने का 300 रुपया. बेचते कितना में? 10 रुपये के जी. तो क्या वो रीसेल वैल्यू है? नहीं, वो तो स्क्रैप वैल्यू. बस जो भी आया था बस. नहीं, समझ आ रहा है ना? इट शुड हैव अ रीसेल वैल्यू बिफोर इट गेट्स एग्जॉस्ट. मतलब बिल्डिंग पूरा धस बस के पूरा खत्म हो गया, उसके बाद क्या उसको हम बेच पाएंगे? नहीं, उसके बाद हम बेच नहीं सकते. तो एग्जॉस्ट होने से पहले अगर उसको बेचते हैं और पैसा मेरे को मिलता है रीसेल वैल्यू, तो वो मेरा एसेट है. ठीक है ना? इट शुड हैव अ रीसेल वैल्यू. यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं
रीसेल वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू, माने इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू का साइन है, नॉट इक्वल्स टू स्क्रैप वैल्यू। ना पैसा तो मिल रहा है, कुछ भी तो मिल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। बिफोर इट गेट्स एग्जॉस्ट आप लिख सकते हो, मेरा जगह नहीं है, आप लिख सकते हो बिफोर इट गेट्स एग्जॉस्ट, ठीक है। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। पहला, एक चीज़ जो मेरे को 1 साल या 1 साल से ज़्यादा मेरे को बेनिफिट दे, 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा मेरे को बेनिफिट दे। दूसरा, उसको बेचने से मेरे को रीसेल वैल्यू मिलता है, रीसेल वैल्यू मिलता है, तब वो मेरा एसेट है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड तो मेरा एसेट है, वरना नहीं है। जैसे ये मार्कर है, क्या ये मेरा एसेट है? कैसे समझेंगे सर? पहला कंडीशन, इट शुड गिव बेनिफिट टू अस फॉर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। तो क्या 1 साल तक मेरे बेनिफिट था, मैं रोज इसको इस्तेमाल करते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, कोई स्टूडेंट्स अगर होता है वैसा संख्यी स्टूडेंट बोलते हैं सर 1 साल तक चल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा, धीरे धीरे चालू करेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है? इट शुड हैव अ रीसेल वैल्यू। इसको बेचने से क्या रीसेल वैल्यू मिल जाएगा क्या? अब तुम मेरे से कोई 1 रुपये देगा, तो वो 1 रुपये इज नॉट द रीसेल वैल्यू, इट्स अ स्क्रैप वैल्यू। कुछ भी देते रहा मेरे को, रीसेल थोड़ी ना, 1 रुपये कमाने के लिए थोड़ी ना 30 में खरीदते इसको, है ना। अब इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। पहला क्या है? लैंड। लैंड क्या है मेरा? नॉमिनल, रियल की पर्सनल। नॉमिनल पर्सनल में क्या आता है? वही नेमिंग वर्ड, नेमिंग अकाउंट। रियल में कोई भी एसेट और नॉमिनल में एक्सपेंस, लॉस, इनकम एंड गेन, ठीक है ना। तो ये लैंड मेरे लिए क्या है? पर्सनल होगा, रियल होगा कि नॉमिनल होगा? पर्सनल होगा, रियल होगा कि नॉमिनल होगा? पर्सनल तो हो नहीं सकता क्योंकि नाम नहीं है, किसी अकाउंट का नाम नहीं है। रियल, हाँ सर रियल। क्यों? क्योंकि एसेट है। कैसे एसेट है? दो कंडीशन। ये जो लैंड है मेरे को 1 साल या 1 साल ज़्यादा मेरे को बेनिफिट देता ही है, और इसको बेचने से बहुत पैसा मिलता है। इट हैज़ अ रीसेल वैल्यू, ठीक है ना। तो इसलिए एसेट है। एसेट होने से कौन सा अकाउंट है? वो रियल अकाउंट है। समझ में आ रहा है? रियल अकाउंट। दूसरा, बिल्डिंग, एक ही कहानी, बेचने से पैसा मिलता है और 1 साल ज़्यादा मेरे को बेनिफिट देता है, तो मेरे लिए रियल अकाउंट है, एसेट है। रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है? क्योंकि मेरा एसेट है, ठीक है। फर्नीचर क्या है? 1 साल से ज़्यादा मेरे को बेनिफिट देता है, 1 साल ज़्यादा मेरे को बेनिफिट देता है और बेचने से पैसा मिलता है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो एसेट है, और अगर एसेट है इसका मतलब वो रियल अकाउंट है, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी एक ही कहानी है इसका भी, और फर्नीचर का भी एक ही कहानी। फर्नीचर एसेट है इसलिए रियल अकाउंट है। मोटर कार, हाँ 1 साल ज़्यादा, जो भी गाड़ी वाली पापा जी यूज़ करते हैं 1 साल ज़्यादा ही बेनिफिट देता है, बेचने से पैसा भी मिलता है, रीसेल वैल्यू मिलता है, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना। तो वो भी मेरे लिए रियल अकाउंट है। क्यों रियल अकाउंट है? क्योंकि वो मेरा एसेट है। डेटर, डेटर मेरे लिए क्या है? व्हाट इज अ डेटर? डेटर मैंने जिसको हम सामान बेचे हैं और उससे मेरे को पैसा मिलने वाला है, वहां पे लिख लो अगर लिखना है तो। डेटर मीन्स जिससे मेरे को पैसा मिलने वाला है, जिससे मेरे को पैसा मिलने वाला है इज नोन एज डेटर। लिख लियो, फिर से रिपीट कर रहे हैं। डेटर मीन जिससे मेरे को पैसा मिलने वाला है, और क्रेडिटर का मतलब जिसको पैसा देना है, मेरे को पैसा देना है, हम पैसा देंगे। जिस, लिखो फिर से, क्रेडिटर मीन्स जिसको हम पैसा देंगे, और डेटर मीन्स जिससे हम पैसा लेंगे, ठीक है ना। लेते किससे पैसा? जो मेरा कस्टमर होता है। और देते किसको पैसा? जो मेरे को उधारी में सामान दिया, मेरा महाजन हुआ, मेरा सप्लायर हुआ, ठीक है। तो डेटर क्या है? डेटर कोई ना कोई आदमी होगा, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे रियल नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, ठीक है ना। तो पर्सनल कह रहा है तो पर्सनल अकाउंट, इंसान समझ में आ रहा है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंसान हो, चाहे नेचुरल इंसान, पर्सनल अकाउंट। कैश, दुनिया का सबसे बड़ा एसेट कैश ही होता है। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट कैश होता है। जिंदगी भर मेरे को बेनिफिट था कैश। सेलिंग वेलिंग का क्या है भाई? तो हमेशा याद रखना, कैश इज माई रियल अकाउंट, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट वही है, पूरा दुनिया उसी के पीछे भाग रहा है। प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी का मतलब क्या होता है? हम पहले से किसी, कोई मेरा एम्प्लॉय, जैसे मेरा स्टाफ है, ठीक है ना, उस स्टाफ को हम 2 महीना एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। प्रीपेड मैंने अभी काम कर रहा है, अभी क्या चल रहा है? दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में हम मार्च तक का पैसा उसको दे के रखे हैं, मैंने जनवरी फरवरी मार्च एक्स्ट्रा 3 महीने का और पैसा दे के रखे हैं, तो वो मेरे लिए प्रीपेड सैलरी हो गया। उसको पैसा ज़्यादा दे के रखे हैं, ठीक है ना। तो प्रीपेड सैलरी, इसके पीछे कोई ना कोई आदमी छुपाई हुआ है, कोई ना कोई आदमी छुपाई हुआ, किसको किसी ने किसी को दिए होंगे, है ना। तो वो मेरे लिए क्या है?
पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हमेशा बोलते हैं किसी भी अकाउंट के पीछे अगर कोई छुपा हुआ है तो वो मेरा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है। एक्सक्यूज मी, हम ऐसे लिख दे रहे, ठीक है ना, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? मान लो जैसे एफडी करके रखे हम लोग, एफडी करके रखे हैं, फिक्स डिपॉजिट, अब जो कि 5 साल बाद वो टूटने वाला है, 5 साल का उसका टेन्योर है। अब क्या हर साल उसमें पैसा कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट जमा हो ही रहा है, क्या उसको विड्रॉ कर पा रहे? नहीं, लेकिन इनकम तो मेरा हो ही रहा है भाई, उसका इंटरेस्ट तो बढ़ ही रहा है, विड्रॉ नहीं कर पा रहा बात अलग है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट जुड़ तो रहा है, दैट इज माई अक्रूड इंटरेस्ट। समझ में आ गया? उठा नहीं सकते बट जुड़ तो रहा है वो इंटरेस्ट उसमें, ठीक है ना। तो अक्रूड इंटरेस्ट इस तो अक्रूड इंटरेस्ट ये क्या है? ये भी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ही है, ये भी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ही है। इसके पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ है, कहीं से कहीं इस पर आ रहा पैसा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट ही है। एग्जाम में अगर लिखना हो तो सिर्फ पर्सनल अकाउंट लिख देना, इतना रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए तुम्हारा, ठीक है ना। गुडविल क्या होता है? मान लो ये इस घर में हम रहते हैं, फॉर एग्जांपल इस घर को हम खरीदे 30 लाख रुपए में, अगर हम बेचेंगे तो मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे को 30 लाख रुपया ही देगा या उससे कम ही देगा, ठीक है, एक ये हो गया। अगर ये घर अगर शाहरुख खान का होता तो 30 लाख में वो खरीदा है, लेकिन बिकॉज ऑफ शाहरुख खान यहाँ पर रहा है, ये 30 का जगह आदमी 60 देने के लिए भी रेडी है कि शाहरुख खान का घर खरीद रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा जो 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा उसको दे रहा है, 30 का जगह 60 दे देगा आदमी, 30 लाख की जगह 60 लाख रुपए दे देगा, तो एक्स्ट्रा जो दे रहा है वो है क्या? दैट इज द गुडविल। नाम है ना भाई, हम तुम रहेंगे थोड़ी ना एक्स्ट्रा पैसा देगा, तो शाहरुख खान रह रहा है तभी तो उसको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। समझ में आ रहा है? दैट इज द गुडविल। रेपुटेशन, गुडविल इज द रेपुटेशन, ठीक है ना। तो वो भी भाई एसेट ही है, कितना सालों का मेहनत है, साल भर वो सालों तक वो गुडविल रहता है। शाहरुख खान का गुडविल सालों तक, और गुडविल जैसे कि 30 का जगह 60 भेजा, 30 लाख रुपया एक्स्ट्रा आ रहा ना, तो वही तो गुडविल है, वही तो रीसेल वैल्यू है, ठीक है ना। तो दैट इज माई रियल अकाउंट। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब हम कुछ सामान बनाए, अब उसको कॉपीराइट पेटेंट रजिस्टर किए, हम पेटेंट रजिस्टर किए, जब भी कुछ सामान हम बनाते हैं उसको हम पेटेंट रजिस्टर करते हैं, इनोवेशन, मेरा अपना इनोवेशन भाई, अपने से हम बनाए। अब कॉपीराइट क्या होता है कि उसी हुबहू वही सामान कोई बनाएगा, ऐसे ही बनाने दे देंगे थोड़ी ना, तो मेरे से फॉर्मूला मांगेगा तो ऐसे फॉर्मूला थोड़ी उसको देंगे, तो उसको कॉपीराइट हम बेचते हैं कि यू कैन कॉपी माई प्रोडक्ट और यू कैन कॉपी माई फॉर्मूला टू मेक दैट प्रोडक्ट और सर्विस व्हाटएवर, ठीक है ना। उसके बदले मेरे को पैसा चाहिए, उसके बदले मेरे को पैसा चाहिए, दैट इज द कॉपी, उसके मतलब होता है कॉपीराइट, दैट इज नोन एज कॉपीराइट, ठीक है। तो वो भी है भाई, बहुत साल तक ऐसे थोड़ी मुंह देकर पैसा देगा, कॉपीराइट खरीदा तो बहुत साल तक उसको यूज करेगा वो, है ना। और वो एक इसका रीसेल वैल्यू है कि नहीं, वो बेच दे किसी को, हम बेचें, हम भी कॉपीराइट बेचें ना उसको, रीसेल वैल्यू, ठीक है ना। तो वो एसेट हो गया। एसेट जब भी हो तभी रियल अकाउंट, एसेट जब भी हो तभी रियल अकाउंट। तीसरा कैपिटल, क्या होता है? पूंजी। कैपिटल माने पूंजी, आया कहाँ से? कोई ना कोई आदमी उसके पीछे छुपा तो हुआ है ही, कैपिटल के पीछे कोई ना कोई आदमी तो छुपा हुआ है ही, तो वो कैपिटल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तुम सिर्फ पर्सनल अकाउंट लिखने से भी चलेगा, ठीक है ना। तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट P.R हमें ऐसे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं उतना। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट इज कैपिटल। ड्राइंग्स का भी एक ही कहानी है, ड्राइंग्स का मतलब पैसा कुछ हम उठा लिए कहाँ से? बिजनेस से। ये कोई पाप नहीं है, टीचर लोग इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करता है, अरे ड्राइंग्स कर लेता तो इंटरेस्ट लग जाएगा। अरे भाई, हम अगर कारोबार कर रहे हैं तो मेरा घर कैसे चलेगा? हमको तो ड्राइंग्स करना ही पड़ेगा। पापा जी जो भी मान लो बिजनेस करके कमाते तो वहां से पैसा नहीं उठाते क्या? पैसा नहीं उठाएंगे तो फिर कमाई मतलब खाएंगे कैसे? पैसा तो उठाना जरूरी है भाई। हाँ, पूरा नहीं उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा तो उठाएंगे जितना खर्चा है, दाल चावल चलेगा कैसे? तो ड्राइंग्स करना कोई गुनाह नहीं है। टीचर्स रिप्रेजेंट दिस वर्ड एज अ क्राइम, बट ड्राइंग्स कोई क्राइम नहीं है। द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वर्ड इज रॉन्ग बाई फ्यू टीचर्स और फ्यू लेक्चरर्स वॉट एवर, लेकिन ड्राइंग्स करना कोई गुनाह नहीं, कोई क्राइम नहीं है भाई, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना कि ड्राइंग्स कोई गुनाह नहीं होता, ठीक है ना। वो रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ है,
टीचर्स की रिप्रेजेंटेशन में कर पाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा, लोन फ्रॉम मिस्टर ए, तो किसी न किसी से हम लिए हैं, मिस्टर ए को तो लोन दिया गया, लेकिन किसी न किसी से लिया ही होगा, तो वो क्या होता है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। ठीक है ना। कैलकुलेट टर्म में हम बोले थे, कैलकुलेट टर्म इज लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब पब्लिक कंपनी, लिमिटेड का मतलब पब्लिक कंपनी। किसी भी तरह की कंपनी क्या होता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी है। समझ में आ गया ना। तो ये भी पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट लिख देना, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है क्या। क्रेडिटर कौन होता है, हम बोले हैं जिसको पैसा देना रहता है, जिससे हम उधारी में कुछ लिए तो देना रहता है कुछ पैसा। ठीक है ना। तो वो मेरे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट हो गया। कोई ना कोई आदमी, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो नेचुरल हो, पर्सनल अकाउंट। ठीक है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल का मतलब क्या होता है, हम कोई सामान तुमको बेचे, तुम मेरे को पैसा नहीं दिया, तो तुमसे हम बिल में लिखवा ले कि भाई तुमसे हम पैसा पाते, तुमको सामान दे दिया। ठीक है ना। अब पैसा अपने पास हम रख लिए, तो वो बिल अपने पास हम रख लिए, तो वो बिल मेरे लिए क्या है, हम पैसा रिसीव करेगा, तो मेरे लिए वो बिल्स रिसीवेबल है। तुम्हारे लिए वो क्या, तुमको पैसा पे करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए वो पैसा बिल्स पेएबल है। वो बिल तुम्हारे लिए बिल्स पेएबल है, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है। ठीक है ना। तो वो बिल्स पेएबल के पीछे कोई ना कोई आदमी छुपा ही हुआ होगा, तो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है ना। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। गुड्स पिलफर्ड, पिलफर्ड का मतलब चोरी, लिख लो वहाँ पे, पिलफर्ड मीन्स चोरी, थेफ्ट, पिलफर्ड मीन्स थेफ्ट। तो ये क्या है, एक तरह का लॉस हो गया ना। हम क्या बोलते हैं, कोई भी तरीके का लॉस हो तो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, वो भी किसी भी तरह प्रोविजन का मतलब कुछ सेपरेट अकाउंट बना के, कौन है नहीं मालूम, कहाँ से बैड डेट होगा नहीं मालूम, लेकिन एक प्रोविजन है कितना तो बैड डेट हो सकता है, तो वही मेरे लिए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट हो गया, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। एक और लिख लो, एक इसमें परचेज। परचेज मेरे लिए क्या है, खर्च है, खर्च। खर्च किसी भी तरह का खर्च क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। लास्ट एक लिख लो, सेल, 22 नंबर, सेल, सेल, सेल्स कुछ भी बोलो, सेल मतलब जो सामान बेचे तो मेरे इनकम हुआ। किसी भी तरह का इनकम क्या होता है, नॉमिनल होता है। ठीक है। और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे बैड डेट, बैड डेट मेरे लिए क्या है, लॉस है, लॉस क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। ऐसा बहुत सारा अकाउंट्स है। ये कुछ एग्जांपल्स तुम लोग को हम समझाएं। ठीक है ना। अगला दिन मॉडर्न अप्रोच सीखेंगे कि होता क्या है, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स चालू होगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स मतलब जर्नल एंट्रीज चालू होगा, अकाउंटिंग साइकिल चालू होगा, ये सब चालू होगा। अकाउंटिंग में समझा देंगे 4-5 पॉइंट उसमें। ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।